Namaste, I'm Shubhi Mathur and I welcome you all to the Ikigai series of Let Us Talk. We hope you are enjoying this series and getting inspired and motivated to search your Ikigai. और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, then don't worry, picture अभी बाकी है. In our previous video, we saw how in her 60s, Mrs. Deepa Mathur found her Ikigai in playing a piano. Now, let us talk about 50s. Today we have with us Mrs. Yamini Das, who started acting at the age of 54. She has been a part of many movies, Sui Dhaga, Ram Prasad Ki Tervi, Haseen Dilruba, 14 Fere, among many others. So let us hear from her story, her journey of exploring herself, rediscovering herself and starting her career in her 50s. So let us welcome Mrs. Yamini Das on Let Us Talk. Welcome Yamini ji. It's a pleasure to have you here with us. It's a pleasure to be here. So let me first start with the most basic question that please tell us about yourself, your initial years. Like, were you a child artist? How were your 20s, 30s? Like, we would like to know about you. It's very simple. So, as a child, because I come from a family of musicians, my father, K. Pannalal, is a legend in Punjabi music and all. And music has been there in our family since 3-4 generations. Okay, so my mom was also a singer, Kiran Arora. Okay. And they got married and both from different backgrounds and all. So music is like handed down to me. So after my father's death when I was 11 years old, my mom took up a job in Doordarshan and I got connected to All India Radio at that time as a child singer artist. You know, so I sang there till the age of 15, 16. Okay, so, but then I fell in love and my mom also loved my husband for me. So I got married at 17. And then from there, my teens and rest of the teen and 20s and 30s went into making a home and family. I got my son Namit when I was 20. So since then, I've been focused on that only. And suddenly at 54, this opportunity came to act in films. So music was your first love? Music is the love. Aha. So in your 20s... That's in my veins. That's in my veins. So in your 20s or 30s, your husband was also in music. So, कभी ये ख्याल नहीं आया कि I should also start a career in music या कुछ performance दूँ मैं उनके साथ? नहीं, क्योंकि वो गजल सिंगिंग में है, चंदन दास गजल सिंगर, और वो मेरा शादी से पहले ही डिसाइडेड था कि मैं स्टेज पे उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं गाऊंगी. और क्योंकि उनका जो मयार है गाने का, वो कैलिबर अलग है. और हम दोनों में से एक ये तो चीज थी कि किसी एक को तो घर संभालना है ना. तो मुझे ऐसा कभी ख्याल नहीं आया या इच्छा भी नहीं हुई. वो बोलते हैं ना, इचिनन कभी नहीं हुआ कि ओ मुझे स्टेज पे गाना है. नहीं, आई हैव बीन कनेक्टेड विद म्यूजिक बिकॉज ही इज नॉट लेट माई क्रिएटिविटी डाउन कहीं पे भी. तो उनके लिए गजलें सिलेक्ट करना, इनफैक्ट ही एजुकेटेड में कि ये म्यूजिक सुनो, वो म्यूजिक सुनो, ये शायर को पढ़ो, उस शायर को पढ़ो. सो I have been on a journey of my own with my growth because at 17 I got married. So I did not study. Academically, मैं college, school गई नहीं. So, but my education went through like this one. Art and music. Yeah. So in 20s, 30s, जब आपकी life settled थी, you were enjoying your role as a homemaker, as a mother. You were having a music, you were having a creative growth, एक artistic bent of mind था. Then how did acting come to you? Suddenly, how did it come to you? It came suddenly to me in a way for me. But I have been connected with my son's work also. As he got involved into acting,
So let me उसके tell plays everyone that her son is an actor. He's an established actor. Yeah. या नमित दास. Yeah. सो उन्होंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल इन्वॉल्व थी. उनका प्लेस देखना, जाके ये पढ़ना, स्क्रिप्ट उनके साथ बैठ के पढ़ना, लाइंस याद करवाना. सो बट आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एंड थिएटर इवन एज अ चाइल्ड. यू नो, मुझे बहुत पसंद था जब वो वीडियो बूम आया 80s का. तो हम लोग तो, मैंने तो मतलब VHS, मेरे पास VCR आ गया तो मैंने धड़ाधड़ फिल्में देखी, पुरानी निकाल निकाल के सब. तो आई हैव बीन फैसिनेटेड विद फिल्म. सो एंड माय हाउस हैज बीन लाइक द अड्डा फॉर किड्स, फॉर थिएटर पीपल टू कम एंड डिस्कस थिंग्स. और फिर उन्हें पता चला तो तब किसी ने कभी फोन कर लिया, आंटी एक सिचुएशन है, इसको जरा शेर बना दो, शेर बता दो क्या बोलेंगे, 4 पेज का सीन है, इसको हमको पोइट्री में करना है तो कैसे करेंगे. तो वो कर दिया, हेल्प आउट कर लिया. सो उसी में एक लड़के का मुझे फोन आया कि रजत कपूर एक कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं, चाची का कैरेक्टर, तो आप क्यों नहीं अपनी फोटो भेज देते. आई न्यू रजत बिकॉज नमित के साथ नमित ने उनके साथ बहुत काम किया है. तो फोटो भेजी, ऑडिशन का कॉल आ गया और बस ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई. What was the first thought which came when your son's friend offered you कि ऐसे एक रोल है? What was your first reaction? How open were you? Were you open to it? उसकी चाहत हुई? क्या हुआ था? नहीं, because see, some people are adventurous in a different way. They are sporty. Okay, तो वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं. मेरे एडवेंचर यही है, राइट. तो मैंने बोला चलो एक और चीज. इसी चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में, मैंने पहले एक प्रैंक शो में हिस्सा ले लिया, रियलिटी टीवी के नए में. एक स्टेज शो कर लिया, वही नमित के फ्रेंड्स के साथ, कि आंटी आते गए तो देखते क्या होता है. दिस इज माई एडवेंचर. तो मैंने सोचा कि देखते हैं फिल्म के लिए ऑडिशन कैसा होता है. इन दिस चैनल ऑल्सो वी से कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. तो आई थिंक आपका लाइफ में वही है कि जो भी आए एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, है ना? देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए. हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ऑडिशन? डिड यू प्रैक्टिस? ना. डिड यू वर्क ऑन योर लुक्स, ऑन योर डाइट, एनीथिंग? कुछ भी ऐसे प्रिपरेशन करी? नहीं. I just spoke to my daughter-in-law Shruti Vyas because she is also an actor. She just said wear a comfortable sari. Yeah. Wear comfortable jewelry, whatever is comfortable, and just enjoy. Yeah. तो dialogue तो वहीं जाके मिले. So enjoyment is the first thing that comes to mind. कि क्या would I be able to enjoy that? Then how was the audition? Was it what you had expected? कुछ वैसा ही था या it was different? या you knew कि भाई your son, your daughter-in-law were in this field, तो you knew कि ऐसा ही होगा, but actually experiencing it first hand, was it different? See, फर्स्ट बात तो मेरी नेचर की ये है कि मैं कोई भी चीज करती हूँ तो एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करती कि वहां जाके क्या होगा. क्योंकि फिर आप एक इमेज बना लेते हो कि वहां जाके ऐसा होगा, और वो नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, और अपने आप को आप लिमिटेड भी कर रहे हो ना कि ऐसा ही होगा, राइट. तो मैं गई थी कि एंजॉय करना है. जब उन्होंने मुझे डायलॉग दिए तो मुझे पता चला कि ये 2 मिनट में सारे डायलॉग याद करना आसान काम नहीं है. फिर भी थोड़ा किया, लेकिन वहां पे भी मुझे मजा तब आया जब वो जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उन्होंने बोला कि आप डायलॉग के बाद मैं आपके ऊपर फेंकूंगा डायलॉग्स, अब आप इम्प्रॉम्प्टू उसका जवाब दीजिएगा. तो वो मुझे बहुत मजा आता है. तो अगर एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है. तो मैं कुछ सोच के ही नहीं गई थी, तो वो एंजॉय किया मैंने बहुत. अरे वाह. और आगे का तो हमें पता ही है कि यू वर सिलेक्टेड फॉर द रोल, यू केम इन द मूवीज. तो आपकी जो एक इतने सालों की कंफर्टेबल लाइफ थी, यू वर हैप्पीली एंजॉयिंग एवरी रोल एज अ होम मेकर, एज अ मदर इन लॉ, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो, एंजॉयिंग लाइफ. और सडनली उसमें से ये एक्टिंग का जो ऑफर आया, तो एक्टिंग लगती ग्लैमरस है बट इट टेक्स अ टोल. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ट्रैवलिंग आउट स्टेशन फॉर लॉन्ग शूट्स, तो इट इज नॉट इजी. ये अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर लाना है. तो हाउ डिड यू एक्सेप्ट इट? इसको भी आपने नेचुरली स्पॉन्टेनियसली करा या दिस वाज एन एफर्ट?
दिस वॉज एन एफर्ट इन ए वे, क्योंकि जब सुई धागा के लिए कड़क की शूटिंग तो बॉम्बे में ही हुई थी और नाइट शूट्स थे, तो आई एम ए नाइट पर्सन। मैं तो 3 बजे तक तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आती, तो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। शाम को उठे 4 बजे, फिर 5 बजे तक निकल गए शूट पे और वहां सारी रात जाके अपना काम किया, तो वो ठीक था। लेकिन मैंने इस एस्पेक्ट पे ना, दूसरे एस्पेक्ट पे मैंने ध्यान ही नहीं किया जब सुई धागा साइन की। वो मुझे 1 हफ्ता पहले पता चला कि मैं 1.5 महीने के लिए भोपाल से भी आगे जाके चंदेरी में रहने वाली। ये मैंने सोचा ही नहीं, ये क्लिक ही नहीं इस एस्पेक्ट पे। हाँ, कि मैं डायलॉग्स पे ध्यान दे रही थी, स्क्रिप्ट पे ध्यान दे रही थी, मेरी वर्कशॉप चल रही थी कि डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, क्या करना है, उसी पे था। तो मुझे 1 हफ्ता पहले पता चला कि मैं तो 1.5 महीने के लिए घर से बाहर रहूंगी। तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी हालत खराब हो गई। मैं घर पे आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो उन्होंने बोला शांत करो, एक थोड़ी सी प्रेयर वगैरह की। मैं लोटस सूत्रा बुद्धिस्ट चैंटिंग में हूँ, तो मैंने आधा घंटा चैंट करके अपने आप को शांत किया। एंड देन ही सेड कि देखो अभी ये इस पर तुमने मेहनत कर ली है, सो नाउ यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो थ्रू इट एंड यू विल बी एबल टू डू दिस। एक नया एक चैप्टर है ये, तो तुम कर लोगी। तो घर की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आई एग्री, राइट, फैमिली मेंबर की। तो उसके बाद मैंने फिर सोचना शुरू किया कि अब डायलॉग वायलॉग छोड़ो, वो तो हो जाएंगे अब बाद में। अब देखना ये है कि मेरे को 1.5 महीने के लिए पैकिंग क्या करनी है पहले। सो फर्स्ट थिंग वाज मेडिसिन। 1.5 महीने में मैं कौन कौन सी मेडिसिन लेती हूँ सब पैक करके जाना है। सो दैट पार्ट वाज समथिंग टू डील विद, क्योंकि मैं अपने घर में भी कभी अकेली नहीं रही हूँ और वहां मुझे होटल के कमरे में अकेले रहना है। मैंने देखा है कि आप एक बार कमर कस लो कि भाई अब ये तो करना है, और बहुत ज्यादा सोचो नहीं क्या ये करा तो वो हो जाएगा, वो करा तो वो हो जाएगा। आपको सिर्फ फोकस ये है कि ये 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने से मुझे अच्छी तरह से गुजरना है, यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके निकलना है। तो ऊपर वाला आपके ऊपर ब्लेसिंग कर दे तो निकल जाता है, सब निकल जाता है, हो जाता है। एंड हाउ वाज दिस 1.5 महीना? पहली बार घर से अलग, सबसे अलग, अपने आप, वो भी काम के लिए, तो कैसा गया था ये 1.5 महीना? वेरी लिबरेटिंग। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे किसी का ख्याल नहीं करना था कि खाना क्या बनेगा, क्या करेंगे, मतलब मैं नाश्ता सुबह क्या बनेगा, सोचना जो होता है ना, दोपहर का खाने में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा। आई वॉज बीइंग टेकन केयर ऑफ। मुझे सिर्फ सुबह उठना है, नहाना धोना है, बाहर निकलना है, गाड़ी आ जाएगी, सेट पे ले जाएगी, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये काम पे फोकस करना है बस। तो वो बहुत सेल्फ एनरिचिंग था। I realized that I can live in a hotel room alone. I can make space for myself. So वहां पे ना मैं किसी की मम्मी हूँ, ना मैं किसी की बीवी हूँ, I'm just an actor. And कभी ये thought आया कि you were missing this part in your earlier years, या yes I was missing this was lacking, या कुछ ऐसी feeling आई थी तब भी? नहीं, मेरी लाइफ में ना शुभी, मैं मोमेंटरी पर्सन हूँ। मैं जहाँ पे भी हूँ लाइफ में, मैं वहां हूँ क्योंकि मैंने चॉइस की है। तो आई डोंट मिस एनीथिंग। So this gave you a different sense of freedom, a sense of liberation, and did it come with a cost? Were you missing out on other things in life? कि आपका रूटीन चेंज हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहां के हिसाब से रहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि वो मेरे को तो फला चीज में सो रही है, वो मैं होम सिक हो रही हूँ। होम में मैं चली जाऊंगी ना, अल्टीमेटली होम तो जाना ही है। और मैं वहां से आ गई तो आई एम मिसिंग बीइंग ऑन सेट। ये सब चीजें होती नहीं है मेरे साथ। मैं जहाँ होती हूँ मैं वहीं होती हूँ।
So what message do you want to give to our viewers? हम हमेशा उनको कहते हैं कि come out of your comfort zone, and तभी आप लाइफ में अगर कुछ बढ़ना है ना, तो आपको अपना वो एक रूटीन से बाहर निकलना होगा, अपने आप को रीडिस्कवर करना होगा. And your story is also a perfect example कि although you were in life, but still जब कुछ opportunity आई, you should, you wanted to experiment it. So what message do you want to give to our viewers? The message is like you said कि आपको या तो आप जहां हैं वहां खुश रहिए, पहली बात, राइट. और दूसरी बात ये कि आपको रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए. क्यों मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने तो की नहीं. भाई क्यों नहीं की? आपने की नहीं तो क्यों नहीं की? आप देखिए. और कुछ भी करने के लिए लाइक यू सेड, आपको अपनी कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा. तो आप जहां हो वहां कंफर्टेबल रहो का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से निकलो मत. कंफर्टेबल रहो का मतलब है कहीं पे भी रहो वो बिग्रेज नहीं करो. बिग्रजिंग इज नॉट गुड. यस. अब मैं घर में हूं, मैं होम मेकर हूं, मैं दूसरी लेडीज को देखती हूँ कि वो वर्किंग है, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, सब कुछ भी, और आई एम बिग्रजिंग माई लाइफ. नो, आई एम कंफर्टेबल देयर. I don't compare myself to anybody. I've never done that. Okay, जो भी स्ट्रगल है वो मेरी है, जो भी गिफ्ट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो मेरे हैं. और कंफर्ट जोन से निकले बिना तो कुछ जिंदगी में नहीं मिलेगा. अगर आप मंदिर में जाके प्रेयर भी करना चाहते हो तो भी आपको निकलना पड़ेगा. So I think to evolve, right? To evolve, to make yourself a better version of yourself, you need to get out. I strongly believe in this. Yeah. Be comfortable in not begrudging life. Yeah, that is important. And I would like to add, because I had read the book and somehow I didn't get the full essence of the book. But when you called me and you told me this is what you're going to talk about, so I started thinking that Ikigai means the purpose, okay? But purpose keeps shifting. Yes. Right? So it can't be one purpose. I can't say that I have found my Ikigai in the acting field. No. When I got married, that was my Ikigai. To make that marriage successful, to be comfortable with my husband, make a relationship work. Then I got a son. That became the Ikigai. So wherever you go, like we were very comfortable in Delhi. Yeah. Okay? But I pushed my husband ke nahi, Bombay chalte hain, wahan jaake kaam karenge. So then it became that Ikigai. So Ikigai keeps changing. So right now, it's acting for me. Yes. But we don't know what is going to happen 5 years from now. True. Maybe 5 years later, we'll be talking about something else. Yes. So anything which gives you a moment, a purpose at that phase of life, maybe that becomes your Ikigai. Even I believe in that. Yeah, as long as you are creating something, you're contributing. Yes. Yes. So if I'm on a set, how much I'm contributing to that, to that project. So whatever I have contributed to my marriage, to my son, to my daughter-in-law, to you. Yes. So like in this moment, this is the Ikigai, that your interview should go well. So Yamini ji, it was wonderful interacting with you, knowing your journey, getting inspired from you, and also that Ikigai is not permanent. It can change with time. Ikigai can come at any stage of life. We should be open, receptive to grab the opportunity. Thank you so much. Thank you, Shubhi. Thank you so much.